Were you born in India? Were you born in yeah? You were born in Bihar, right? Yeah, actually, I'm from Bihar. Okay. Yeah. Just when did you move to the UAE, and also when you came in, obviously the situation now you were up against it. So just that partnership with Aryan, how much did you enjoy like performing like that at the World Cup stage? Yeah, that time the situation was tense as a 12 run per over was required. So I thought to back my instinct and just back my natural talent I was doing that time. Coincidentally, I was started my journey from Jamia Millia Islamia, New Delhi, and all I can say, this was my home where I started professional cricket. Um, in addition to that question, for how long did you play in Jamia, and who all did you play against, etc.? If you I could throw played some light on that. around 3 to 4 years from 2014 to 19 and played two consecutive North Zone from Jamia, 2017 and 18 somewhere. Okay, so my Sandeep from Hindustan Times. Could you throw some light on Junaid's performance tonight? This is, I mean, only thrice has a UAE bowler taken 5 wickets in a T20I. Absolutely, he's our senior bowler and he has done incredible on Delhi wicket. So last time what went wrong against New Zealand, he just backed his natural things and he made us proud by taking 5 wickets and we were in game against Canada. Shoaib, hi, Kumar Sham from Al Ittihad, Abu Dhabi. Two things. Towards the end, let's say around the last 5 overs, there were a couple of balls you were missing, going straight to the wicketkeeper. There were no expressions. What was the kind of thoughts that were going in your mind, and also what was the conversation with you and Aryan about how to take the chase? Were you worried that at 56 needed from 24 balls or something like that? Do you think that you had a chance? What was the strategy? What was the talk? The Everything. strategy was quite simple. We were requiring only 12 runs per over. So as MS Dhoni said, when you are on the pitch and if it requires more pressure game, so just back yourself, be calm. That's okay. I was thinking the same. Hi Sohail, first of all congratulations on the win and very well played today. Just want to know from you like वो क्या phase आया था कि जब आपको लगा कि इंडिया से यूएई शिफ्ट हो जाए और क्रिकेट एज अ करियर परस्यू करे, like what was the reason behind it and everything, and just a word on your mindset as well, like जब आप बाहर आए थे तो आस्किंग रेट काफ़ी हाई था एंड आपने नारायण से फोर्सेस मिलकर ज्वाइन करके वो सारा टारगेट चेस कर दिया, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए आप. Honestly speaking, this is, I mean, beyond a game. क्योंकि जब मैं गेम में अंदर विकेट में बैटिंग करने आया तो आई थॉट दिस इज़ द सिचुएशन. मैं यूएई मूव ऑन किया था कोविड के टाइम पे, यहाँ पे शायद इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी एंड आई वाज मैरिड इन 2021. माय डॉटर एंड माय वाइफ वाज देयर, माय पेरेंट्स वर देयर. सो आई थॉट दिस इज़ द गेम व्हाट आई कैन डू माय बेस्ट. कि इतना जितना भी स्ट्रगल किया लास्ट 4 to 5 ईयर्स में, ये फेज़ अगर होता है तो ठीक है. व्हाट एल्स आई कैन आस्क फ्रॉम द गॉड. मैच का माइंडसेट यही था कि कोशिश करना है कि सामने छोटी बाउंड्री उसको टारगेट करने का प्लान था हमारा, और अगर थोड़ा सा खिंची हुई बॉल भी है, 3/4 बॉल है, तो उस पर हार्ड हिट के लिए जाना है. तो एनी हाउ वी वर रिक्वायरिंग 1 6 और 1 बाउंड्री इन ओवर. शोएब, अगर आप बता सकते हैं कि यूएई में आप क्या करते हैं, क्या बैक स्टोरी क्या है और क्या क्या आपका प्रोफेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता सकते हैं. कब गए थे आप यूएई, और साथ में ये भी थोड़ा बताइए कि 66 फॉर 4 था, 12.3 ओवर्स हो गए थे, बहुत आस्किंग रेट काफ़ी हाई था और आप लोग 12 रन्स पर ओवर का पार्टनरशिप था, 84 ऑफ 42 बॉल्स. तो उस समय आप दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, आपके और आर्यंस के? मेरे और आर्यंस से पहले मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा हमारे कोच लालचंद राजपूत और जो भी एंटायर मैनेजमेंट जो साथ में, जब मैं बैटिंग करने जा रहा था तो दे वर सेइंग ओनली वन थिंग, जस्ट बिलीव योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम तो कर सकता है. और जिस तरह से उन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में काम किया मेरे ऊपर, कि आई एम ए डेब्यूटेंट राइट नाउ. 2 मंथ्स पहले ही मैंने ओडीआई में डेब्यू किया और वर्ल्ड कप जैसा स्टेज वापस से T20 सेटअप में आना, बस उनका एक बिलीव था. अंदर जाने के बाद आर्यंश इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसकी पॉजिटिविटी मेरे पास आ रही थी कि नहीं हम कर सकते हैं. फ्रॉम एवरी बॉल ही वॉज लाइक नहीं, वी विल डू इट. आप मैच की हाईलाइट्स में देखेंगे उसके एक्सप्रेशंस. तो ये तो गेम का पार्ट था. और यूएई में मैं एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एज सेल्स पर्सन काम करता था दिन में, और
जैसा कि वहाँ के क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम रात में क्रिकेट खेलते हैं, दिन में जॉब करते हैं, तो यही ओवरऑल आया। लास्ट 4 to 5 मंथ से मैं प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा हूँ अभी वहाँ पे। 2021 में गया था, नवंबर 2021, और अभी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट कंपनी है प्रॉस्पेरो नाम से, वो स्टॉक मार्केट की कंपनी। तो मैंने जामिया से सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन किया। हाय सोहेब, हेलो इधर। मैं कभी आपने मतलब जो आज आपने किया, क्या आपको पहले मतलब आदत है, फिनिशर का रोल है, या कभी आपने पहले भी किया है कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में? थोड़ा उसके बारे में बता रहे। जी बिल्कुल। और एक और कि क्या आपका कुछ बिहार से भी रिलेशन है, वो उसके बारे में अगर कुछ बता पाए। एक्चुअली मैं बॉर्न बिहार का ही हूँ और काफ़ी टाइम मैंने बिताया बिहार गया डिस्ट्रिक्ट में। और चूँकि बहुत लेट प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया था मैंने 2014 में, लेकिन उससे पहले ये सिचुएशन टेनिस क्रिकेट में आती रहती थी जब हम वहाँ पे रेड टेनिस से खेलते थे। इवन कि आई वाज प्लेइंग इन नॉर्थ जोन फ्रॉम जामिया, तो उस टाइम पे भी काफ़ी इस तरह की सिचुएशन आई। और यूएई में भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो आई वाज फैमिलियर विद दिस सिचुएशन। तो बिलीव था कि अगर हम कर सकते हैं, पहले भी किया है, वापस से कर सकते हैं। आउट ऑफ 10 आप 3 to 4 टाइम ऐसा कर पाते हैं जब आप अपने पे बिलीव कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।